Good afternoon, everyone. I am CA Mamta Chaudhary, moderator of this webinar. We are delighted to welcome you all in the webinar being organized by CPE Committee of ICI. It is my pleasure to be a moderator for the 80th webinar on leveraging government e-marketplace, GEM for MSMEs, and government organizations and new labor codes. In a short while, we will start this webinar. First, I would like to apprise you about CPE Committee. In today's ever-changing professional scenario worldwide, the biggest challenge for professionals face is to stay on the top of their game while adapting to new requirements and norms. Therefore, it is imperative to aim to be up to date to offer unique guidance, influence others with their innovative approach and expertise. It is also vital to stretch old ideas beyond traditional boundaries to create new perspectives. In this context, CPE Committee facilitates professionals to maintain, improve, and broaden their knowledge, skills, and expertise required to achieve their professional goals through webinars, seminars, etc. The program for this evening is also follows. We have two sessions for 1 hour each, and topics are leveraging government e-marketplace for MSMEs and government organizations, opportunities and best practices, new labor code, what to do now. Our eminent speakers will talk about above mentioned two emerging areas of professional interest. So, can we start? Or Chairman sir is with us? You can start. You can introduce Shilpa ma'am. Okay. So it's my privilege to introduce our speaker for this session, CA Shilpa Agarwal. CA Shilpa Agarwal is a chartered accountant and a certified government e-marketplace expert with over 8 years of experience in providing GEM consultancy to government organizations and MSME industries. She has successfully guided numerous entities in registering, bidding, and optimizing their presence on the GEM platform. She also conducts specialized training sessions for various government departments and private organizations, empowering professionals to leverage the GEM system efficiently. She is committed to promoting transparency, efficiency, and compliance in public procurement through her expertise. I now request CA Shilpa Agarwal to kindly take over the session. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for engaging me in the session. So myself, CA Shilpa Agrawal. So I'm dealing in the government e-marketplace from last 8 years. So can we start the today's session? My topic is government e-market. Yes, ma'am. Hold on. The screen is visible, ma'am? Yes, President. Okay. So basically, the government e-marketplace. No, sir. Right now is properly audible? Yes, ma'am. I'm audible properly, sir? Yes, ma'am. Okay, fine. So basically, we are learning about the government e-marketplace. It's a government portal where the government organization can procure their goods and services, and we as a seller can able to provide the services, and we can able to sell the products as well. So now we are showing the portal. This is the government e-marketplace portal, gem.gov.in. In this portal, this is the portal. Yes, portal is not shared. Hold on. Okay. Now the portal is shown. No, ma'am. Okay, this is the portal which is developed by the government of India for the
proper procurement process, sir. So this is the portal government e-marketplace jam.gov.in जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है एंड एमएसएमई स्टार्टअप्स एंड अदर सेलर्स अपने सर्विसेज प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली विदाउट एनी मिडल मैन. इट्स अ टोटली ऑनलाइन पोर्टल. इट्स नॉट totally online portal. Hold on. So today we understand that how the GEM will work, who can able to sell, who can able to register on the government e-marketplace. Or MSME and startup can also able to register on the government e-marketplace. How the GEM will work, we can also able to understand everything about the government e-marketplace. So the government e-marketplace will launch by the Government of India in 2017 and it will be governed by rule number 149 of GFR amended by the Government of India. So there are various procurement method which we can able to discuss during our session in detail. First is direct purchase, second is the L1, third is the bidding and reverse auction, and fourth is the forward auction. Who can able to register as a buyer on the GEM portal? Now the PPT is shown. Who can able to register as a buyer? Okay. Who can able to register? GEM is a special purpose vehicle which is developed by the Government of India. So who can able to register as a buyer on the GEM portal? Central government, state government, central PSUs, state PSUs, and autonomous body. These can able to register as a buyer on the GEM portal. Who can able to register as a seller on the GEM portal? OEM, original equipment manufacturer, MSE, micro small enterprises, startups, and authorized resellers. And also the service providers can able to register themselves as a service provider on the GEM portal. So we as a chartered accountant professional, we can also able to register ourselves as a service provider on the GEM portal to provide the professional services to the Government of India directly, sir. Till now, 1,66,654 approx primary user. Basically, these government organization is registered on the GEM portal and approx 1.9 lakh crore merchandise value is already crossed in the last financial year on the government e-marketplace portal. Government e-marketplace is a single portal where the government buyer can also able to register and the registered seller private organization can able to sell their goods on the e-marketplace. It's a paperless, cashless and the transparent procurement process, mandatory for many central and the state government departments. Who can able to register as a seller on the GEM portal? Proprietorship firm is eligible to register themselves as a seller. Partnership firms and LLPs are also eligible to register themselves as a seller on the GEM portal. Private organization and private limited companies also eligible to register themselves as a seller on the GEM portal. MSME, startups and service providers can also able to register. How the GEM portal will work.
Firstly, the seller needs to be registered themselves as a seller on the GEM portal. रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी सेलर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जेम पोर्टल पे लिस्ट करने होते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता लग पाए कि वो किन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करते हैं. Then government can able to place directly orders to the sellers and through direct purchase, through L1 purchase and through bidding. So once the order will be finalized, the order will came to the directly to the seller. Benefits of GEM for MSME. So टोटल प्रोक्योरमेंट का 25% प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट को एमएसएमई से प्रोक्योर करना कंपलसरी है. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मेजर बेनिफिट कि अगर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट 100 सीआर का है तो उसमें से 25% गवर्नमेंट को मैंडेटरी है, वेदर वो स्टेट गवर्नमेंट है वेदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि वो एमएसएमई से प्रोक्योर करेंगे. Second benefit for MSME is EMD exemption. While participating in the tender, so seller को EMD, earnest money deposit करना होता है to participate in a tender. If the seller is the MSME seller, so he can able to claim the benefit of EMD exemption. उन्हें EMD deposit करने की requirement नहीं है. Without EMD deposit करे, by claiming the exemption, they can able to claim the benefit of EMD exemption on the GEM portal. And the third is the major benefit is for the MSME is they can able to claim the turnover and experience exemption also on the GEM portal. First benefit is 25% of the total procurement is done through the GEM portal. Second benefit for MSME is they can able to claim the EMD exemption on the GEM portal. And third benefit is they can able to claim the turnover and experience exemption on the GEM portal. Majorly, and also there is a timely and the short payment benefit is provided by the government to them. Why GEM is strategic for MSME? जैम पोर्टल इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट से डील करने के लिए किसी भी मिडल मैन को रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी कैन डायरेक्टली एबल टू एक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी कैन एबल टू गेट डायरेक्टली ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दिस पोर्टल. सो इट्स लो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन और वी कैन से नो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन थ्रू दिस जैम पोर्टल. It's a stable and the recurring orders. If once the MSME is enrolled as a seller on the GEM portal, they can able to get the frequent order on the GEM portal, because there is also a facility of rating on GEM portal. Once the MSME is registered as a seller and once he receive a order on GEM portal, they can able to get multiple frequent order, recurring order through the GEM portal by improving the sales on GEM portal. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि कितने मेथड से आप जेम पोर्टल पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स ऑन द जेम पोर्टल इज डायरेक्ट परचेज. The limit of the same is up to rupees 50,000. So if any MSME startup or any other service provider want to sell their goods and services to the GEM portal, basically GEM portal means directly to the government organization. So up to rupees 50,000 तक उन्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डायरेक्टली गवर्नमेंट को GFR 149 के थ्रू अलाउ किया गया है कि वो 50,000 तक का प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली किसी भी सेलर से कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. सेकेंड मेथड इज पुश बटन प्रोक्योरमेंट. दिस मेथड लिमिट इज अप टू rupees 5 lakh. If any government organization want to procure the goods and services
up to rupees 5 lakh, they can able to use this method called push button procurement. इस मेथड में ये फास्टर मेथड है रेदर देन डायरेक्ट परचेज, लेकिन इसका लिमिट 50,000 से अबव है. अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट 50,000 से अबव है बट अप टू रुपीज 5 लाख है, तो दे कैन एबल टू यूज दिस मेथड पुश बटन procurement. And the third and the major important method of the procurement on government e-marketplace is L1 method. As the name itself specify lowest one. इन दिस मेथड, अगर हम ओल्ड सिस्टम की बात करें जब गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रोक्योर नहीं करता था, तो L1 मेथड मैनुअली होता था. गवर्नमेंट को 3 या 4 कोटेशन आउटसाइड से लेना होता था, देन दे विल कंपेयर द सेम. And right now, the L1 method, it's a pure online method introduced by the government. In this method, government can compare between the 3 vendors, but it's a paperless process. In this process, all the comparison between the 3 vendors is done through online mode. So the L1 method is the online method in which द कंपेयर किया जाता है 3 पार्टीज के साथ में, जो 3 डिफरेंट कोटेशन होता है, एंड जो लोएस्ट कोटेशन होता है उसे गवर्नमेंट वर्क अवार्ड करता है. ये डायरेक्टली किया जा सकता है बिना किसी बिड या टेंडर को फ्लोट करके. फोर्थ मेथड इज द बिड एंड आरए. बिड, जैसे कि हम सब जानते हैं, बिड को हम टेंडर भी बोलते हैं. सो टेंडर मेथड के अंदर जो हमें प्रोक्योरमेंट करना होता है, so tender, government will be float the tender on the GEM portal. We can able to search the tender, MSME startup can able to search the tender, what tender is floated on the GEM portal, and they can able to participate directly. टेंडर का बेनिफिट एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए ये है कि उन्हें एग्जम्पशन मिलता है. अगर स्टार्टअप की मैं बात करूं तो स्टार्टअप को एक्सपीरियंस और टर्नओवर, बिकॉज वो स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टार्टअप, उनके पास ना ही एक्सपीरियंस है उस फील्ड से रिलेटेड, ना ही वो टर्नओवर क्राइटेरिया जो बिड में स्पेसिफाई किया है उसे जस्टिफाई कर पाते हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, हियर द स्टार्टअप मीन्स ओनली दी DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप. अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दी DPIIT रिकॉग्नाइजेशन. ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड LLP आर eligible to get the Startup India recognition. So अगर मैं startup word use कर रही हूँ तो it means DPIIT recognize startups. So startup can able to claim the benefit of turnover exemption, EMD exemption, and also the experience criteria exemption on the GEM portal. So here the bid means tender and RA means reverse auction. सो जेम पे रिवर्स ऑक्शन भी होता है. जेम पे हम लोग गुड्स सेल करने जा रहे हैं या सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं, सो वी नीड टू रिड्यूस अवर प्राइस. इफ द बिड ऑन द जेम पोर्टल इज RA बिड, सो वी नीड टू चेक वेदर द RA बिड इज देयर और नॉट. सो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि बिड कैसे सर्च की जाती है जेम पोर्टल पे, किस तरीके से उन्हें हम रीड कर सकते हैं बिड डॉक्यूमेंट को. So this is the GEM portal, gem.gov.in, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करती हैं. तो किस तरीके से हम जेम के बिड को सर्च कर सकते हैं? सो हमें जाना है फर्स्टली बिड सेक्शन में. बिड्स के बाद हमें क्लिक करना है लिस्ट ऑफ बिड्स पे. एज सुन एज आप लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरियस बिड्स जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्लोट की गई हैं वो यहाँ दिखेंगी. कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैम पे बिड फ्लोट नहीं कर सकता. तो अगर हम जैम पे डील कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैम पे रजिस्टर कर सकते हैं बट दे कैन एबल टू रजिस्टर्ड एज ए सेलर ओनली, नॉट एज ए बायर. ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही जैम पे सेल कर सकते हैं. सो मैं आपको बिड के बारे में बता रही थी. तो बिड के लिए हमें जाना है बिड पे क्लिक करके लिस्ट ऑफ बिड पे. जैसे ही हम लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक करेंगे, जितनी भी लाइव बिड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो आपको यहाँ दिखेंगी. तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 36,980 बिड्स राइट नाउ लाइव हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू फ्लोटेड हैं जेम पे. सो यू नीड टू सर्च द रिलेवेंट बिड एज पर in which sector you deal. If you are MSME, so you need to search the sector and you need to search the product in which you deal. अगर आप स्टार्टअप है तो अकॉर्डिंगली
किस फील्ड में आपने स्टार्टअप किया है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सर्च द प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज ऑफ योर स्टार्टअप्स। सो बिड को सर्च करने के लिए हमें लिस्ट बिड पे जाके लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक करना है। देन हमें चेक करना है कि हमसे रिलेवेंट कौन सी बिड है। तो अगर मैं बात करूं चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए, तो यहाँ पे एक एडवांस सर्च ऑप्शन गिवन है। वी नीड टू गो ऑन द एडवांस सर्च ऑप्शन एंड देन वी नीड टू सर्च द कैटेगरी हेयर। मैन पावर hiring for financial services offsite chartered accountant. And we need to click on search. So right now 13 बिड्स ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में हम एज ए प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए गवर्नमेंट द्वारा फ्लोट की गई है। आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट ने भी बिड फ्लोट की है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इन सब के थ्रू भी हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। सो वी एज ए चार्टर्ड वी कैन एबल टू, हमें सबसे पहले जैम पे जाके एज ए सेलर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करना होगा अगर हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाह रहे हैं एंड गवर्नमेंट को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं विदाउट एनी मिडल मैन। सो एक कोई भी बिड मैं आपको रेंडमली डाउनलोड करके उसे रीड करना बताती हूँ कि किस तरीके से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वी नीड टू क्लिक ऑन दिस। As soon as you click on the bid number, the PDF will be auto open. You need to download the PDF. Let me share the PDF with you. This is the Ministry of Civil Aviation bid. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन की ये बिड है। मैन पावर हायरिंग फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन साइट इंटरनल ऑडिट, इट्स एन इंटरनल ऑडिट बिड। सो जो अभी मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कहाँ दिखेगा वो कि आपको वेदर बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है बिड में या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टैब है एमएसएमई रिलैक्सेशन फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर। अगर आपके बिड डॉक्यूमेंट में यहाँ यस मेंशन है, सो इट मींस जो गवर्नमेंट है वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है फॉर एमएसएमई। सो एमएसएमई को ये इंश्योर करना है बिफोर पार्टिसिपेटिंग द बिड कि वेदर एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है या नहीं। अगर यहाँ यस मेंशन है इट मींस द एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड टू एमएसएमई। अगर नो मेंशन है कि मतलब गवर्नमेंट एग्जम्पशन नहीं प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड है स्टार्टअप रिलैक्सेशन फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर। बोथ आर डिफरेंट। एमएसएमई सेपरेटली एग्जम्पशन क्लेम करती है एंड स्टार्टअप सेपरेटली। अगर यहाँ यस मेंशन है तो स्टार्टअप्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर गेट दी बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर। ये तो गवर्नमेंट का कॉल होता है कि वेदर वो आपको एक्सपीरियंस ऑन टर्नओवर का एग्जाम्पशन प्रोवाइड करना चाह रही है या नहीं प्रोवाइड करना चाह रही। बट ईएमडी एग्जाम्पशन इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड। ईएमडी का एग्जाम्पशन एमएसएमई को प्रोवाइड करना कंपलसरी है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एमएसएमई की अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रोडक्ट सेलर हैं तो ओनली ओईएम एमएसएमई, ओनली मैन्युफैक्चरर कैन एबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ ईएमडी एग्जाम्पशन ऑन द जेम पोर्टल। अगर आप रीसेलर हैं, ट्रेडर हैं, तो आप ईएमडी एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है जेम पे। So you have to make ensure कि only manufactured MSME can able to claim the benefit of EMD exemption on the GEM portal. But अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप एमएसएमई के प्राइव्यू में आते हैं, एमएसएमई क्राइटेरिया जस्टिफाई कर रहे हैं, तो यू कैन एबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ ईएमडी एग्जाम्पशन because we are a professional, we are the service provider, and if we want to claim the EMD exemption and हम EMD की प्राइवेट के कवर एरिया में आते हैं तो हम उस बेनिफिट को EMD एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकते हैं।
मेरा पर्पस बिड डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए ये था कि मैं ये बता सकूं आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी गवर्नमेंट वेरियस बिड्स फ्लोट करती है। हमारे लिए वेरियस अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, बट अवेयरनेस इतनी नहीं है बिकॉज इट्स अ पोर्टल। तो 2017 में लॉन्च हो गया था बट उतनी अवेयरनेस नहीं है प्रोफेशनल के अंदर टू अंडरस्टूड दैट हाउ द जैम पोर्टल इज वर्क। एवन मैं प्रोफेशनल की क्या बात करूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही अवेयरनेस नहीं है किस तरीके से जेम पे काम होता है, उन्हें खुद को नहीं पता है। बट ग्रेजुअली दे अंडरस्टूड 2017 में जब जेम लॉन्च हुआ था, और तब से आज तक 2026 में हम हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारा अडॉप्शन हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.9 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है जेम पोर्टल पे। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि मेजर प्रोक्योरमेंट्स अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू हो। पहले बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो राइट नाउ भी वर्क कर रहे हैं, सीपीपी है, स्टेट के भी अपने अपने प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं। बट गवर्नमेंट का एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारे प्रोक्योरमेंट अब शिफ्ट हो जाए जेम पे, बिकॉज ये प्रॉपर पोर्टल है, यहाँ पे पेपरलेस पोर्टल है। प्रोक्योरमेंट से लेकर पेमेंट तक, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, पेमेंट, अवार्ड, सब कुछ ऑनलाइन है और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है। और इसमें कोई भी ह्यूमन पर्सनल इंटरेक्शन की नीड नहीं है, इसलिए ये करप्शन को भी रिड्यूस करता है। कोई भी मिडिल मैन नहीं है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से जाके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू आप वर्क ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक बिट डाउनलोड किया जो कि एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। लेट्स डाउनलोड द अनदर बिट टू अंडरस्टूड द बेटर हाउ वी कैन एबल टू रीड द बिट डॉक्यूमेंट। दिस इज द अनदर बिट। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो यहाँ पे 2 अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ऑन साइड अकाउंटेंट, एंड क्वालिफिकेशन है सीए और सीडब्ल्यूए, जिसे एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 to 7 years। मेरा मोटो किसी बिड को प्रमोट करना नहीं है, मेरा मोटो जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि जैम पे चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए वेरियस अपॉर्चुनिटी है। सो यू हैव टू गो, किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं जैम पोर्टल की अपॉर्चुनिटी, आपको बिड डॉक्यूमेंट कैसे रीड करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दिस इज द बिड डॉक्यूमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री का है। ये बिड नंबर होता है, और ये किस डेट पे बिड फ्लोट की गई है वो आपको यहाँ दिखता है। बिड का एंड डेट क्या है, आप किस एंड डेट तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका ऑफर कितने दिन तक वैलिड है वो आपको यहाँ पता लगेगा। दिस इज अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो टर्नओवर होना चाहिए लास्ट 3 years का वो 10 लाख का है, एंड एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 5 years का। तो कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट जिन्हें 5 years का एक्सपीरियंस है, उनका टर्नओवर लास्ट 3 years में 10 लाख है, तो दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस बिड। ईएमडी अगर यस होता है तो यहाँ ईएमडी का अमाउंट मेंशन होता है, बट अगर आप एमएसएमई में कवर होते हैं तो आप ईएमडी का एग्जाम्पशन इजीली क्लेम कर सकते हैं। ईपीबीजी इज द परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद देनी होती है, जबकि जो ईएमडी होता है वो हमें एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन ही पे करना होता है, अगर हम एमएसएमई क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। अगर हम एमएसएमई क्राइटेरिया में आते हैं तो हम ईएमडी का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ईपीबीजी यहाँ डिमांड किया गया है 5% जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का होगा, और 14 months का बैंक गारंटी हमें उन्हें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए यहाँ पे एमआईआई, मेक इन इंडिया परचेज प्रेफरेंस है,
एंड ऑल्सो एमएसएमई को परचेस प्रेफरेंस प्रोवाइड किया गया है। सो एमएसएमई को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इस बिड डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें क्लियरली पता लग रहा है कितना 15% तक, अगर L1 से 15% हायर भी एमएसएमई कोट कर रहा है तो उसे परचेस प्रेफरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इफ यू कोट 10 lakh plus 15%, इन दैट केस ऑल्सो इफ यू कवर्ड इन द एमएसएमई क्राइटेरिया तो आपको बिड अवॉर्ड हो जाएगा। लेकिन तो ये बेनिफिट है जो एमएसएमई को गवर्नमेंट दे रही है कि परचेस प्रेफरेंस दे रही है एमएसएमई को ऑन द जेम पोर्टल। दीज आर द रिक्वायरमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। चार्ट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। वेस्ट बंगाल का ये बिड है। अगर आप डिटेल में कि उनको क्या वर्क करना है तो आप ये एटीसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके डिटेल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि बिड की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी जैम पोर्टल पे हम अपने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। बिड्स में जाके हमें लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक करना है एंड देन वी नीड टू सर्च अवर एग्जैक्ट बिड नेम, एग्जैक्ट कैटेगरी नेम इन विच वी आर डीलिंग। अगर आप मैन पावर में भी डील करते हैं तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी यहाँ पे। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ मेथड होता है बिड, जिसे हम टेंडर भी बोलते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से सर्च किया जाता है, किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है एंड हाउ टू रीड द टेंडर डॉक्यूमेंट ऑन द जेम पोर्टल। एमएसएमई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हैं या किसी सर्विस में डील करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप जाके सर्च कर सकते हैं टेंडर एंड रिलेवेंट टेंडर डाउनलोड करके उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को गो थ्रू करके आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटेंट टू बाइंग पीएसी, बेसिकली पीएसी का मीनिंग होता है प्री असेस क्वांटिटी। अगर कोई भी जेम पोर्टल पे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि वो एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम का प्रोडक्ट ही प्रोक्योर करे तो वो पीएसी बिड का ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। बट इससे कंपटीशन को डिफेम होता है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर बाय करना चाह रही है और वो पीएसी बिड में एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम, सपोज कीजिए वो डेल का कंप्यूटर बाय करना चाह रही है, तो वो पीएसी बिड के केस में ब्रांड स्पेसिफाई कर सकती है अपने बिड में, जबकि नॉर्मल बिड के केस में कोई भी ब्रांड नेम स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। तो पीएसी बिड एक रिस्ट्रिक्टेड बिड होती है जिसमें डेल के अलावा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अगर वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड नेम के लिए निकाला गया है। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेटर विद रीजन कि क्यों पीएसी बिड रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ फ्लोटिंग द बिड। नॉर्मल बिड बिना किसी अप्रूवल लेटर के अपलोड की जा सकती है, लेकिन अगर पीएसी बिड गवर्नमेंट को अपलोड करनी है जेम पोर्टल पे तो उन्हें स्पेसिफिक सीनियर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। मेजर प्रोक्योरमेंट मेथड जैम पोर्टल के 5 हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट परचेज जिसका लिमिट होता है अप टू ₹50,000। सेकेंड मेथड इज पुश बटन प्रोक्योरमेंट जिसका लिमिट ऑफ प्रोक्योरमेंट है अप टू ₹5 लाख। एंड थर्ड मेथड इज L1 जिसका लिमिट है अप टू ₹10 लाख। फोर्थ इज बिड। बिड का कोई लिमिट नहीं है। अगर हमारे माइंड में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अबव 10 लाख ही गवर्नमेंट बिड फ्लोट कर सकता है, गवर्नमेंट की बिड 10 लाख से बिलो भी आ सकती है। अबव 10 लाख इज नॉट बिड। बिड का कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख का भी गवर्नमेंट चाहे तो बिड फ्लोट कर सकती है एंड गवर्नमेंट चाहे तो अबव 10 लाख। प्रोक्योरमेंट के ऑप्शन को ऑप्ट करना हमारा सेलर का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बायर का क्राइटेरिया है कि बायर कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाह रहा है ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू प्रोक्योर देयर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। लेकिन पीएसी बिड कब गवर्नमेंट ऑप्ट करेगा? जब उन्हें स्पेसिफिक ब्रांड नेम का ही गुड्स प्रोक्योर करना है।
की एडवांटेज फॉर बायर जैम यूज करने के क्या है? एंड टू एंड सिस्टम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन ही करना होता है, एंड पेमेंट भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही, जो भी ऑर्डर अवार्ड होते हैं उनको पेमेंट भी लास्ट में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही होता है। इट्स प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ बाइंग, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई बायर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू प्रोक्योर करता है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट अथॉरिटी बायर ने किस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड किया है, किस वैल्यू पे अवॉर्ड किया है, वेदर प्रॉपर टीडीएस जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस डिडक्ट किया गया है या नहीं किया गया है, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सेम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट को पेमेंट रिलीज करता है टू द सेलर जिसे कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था। तो ऑल थिंग्स विल बी द ट्रांसपेरेंट ऑन द जेम पोर्टल, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सर्च, कंपेयर एंड सेलेक्ट एंड बाय फैसिलिटी। सो गवर्नमेंट के पास वेरियस ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको कोई एक कैटेगरी सर्च करके शो करती हूँ। This is the category high-end desktop computers. तो मैंने अभी आपको एक ऑप्शन बताया कि कंपेयर कर सकते हैं। तो जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं, आप देख रहे हैं इस कैटेगरी में 42,365 प्रोडक्ट जेम पे लिस्टेड हैं, जो कि गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। बहुत सारे ब्रांड्स जो एसर हो गया, डेल, लेनोवो, एचपी, मेजर ब्रांड जेम पे लिस्टेड हैं, तो गवर्नमेंट इजीली कंपेयर कर सकती है एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकती है कि किन से उन्हें प्रोक्योर करना है। तो डायरेक्ट परचेज के केस में भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उन्हें कौन सा ब्रांड लेना है। पुश बटन प्रोक्योरमेंट में भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। L1 के केस में भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उन्हें कौन से ब्रांड और किस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन बिड के केस में गवर्नमेंट ओनली प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर सकती है। ब्रांड विल बी डिसाइडेड, जिसका लोएस्ट कोटेशन होगा उसको बिड अवार्ड होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट बिड के केस में भी चाहती है कि एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम को ही बिड अवार्ड हो, तो उन्हें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है? पीएसी, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके बिड फ्लोट कर सकती है। अगर देखिए, आप यहाँ अगर नोटिस कर रहे हैं तो हर जगह स्टार्टअप वर्ड मेंशन है। तो जो भी स्टार्टअप, मतलब डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं, तो वो उनके प्रोडक्ट एज ए स्टार्टअप यहाँ डिस्प्ले होते हैं जेम पे, कि दिस प्रोडक्ट इज लिस्टेड बाय द स्टार्टअप कंपनी। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर उनका जेम पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इजीली हमें पता लगेगा कि ये किसी स्टार्टअप ने लिस्ट किया है। So this is how the government can able to search, compare, select and buy accordingly as per their requirement. ऑफर रिच लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको अभी शो किया कि अराउंड 43,000 कंप्यूटर सेलर्स आर रजिस्टर्ड। सो इतनी मेजर लिस्टिंग है ताकि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर सिलेक्शन कर पाए वो वेरियस रजिस्टर्ड वेंडर्स में से। सो इट्स अ गुड ऑप्शन जहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे कैन एबल टू गो डायरेक्टली ऑन द जेम पोर्टल, एंड जस्ट लाइक एन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, इट्स अ गवर्नमेंट पोर्टल जहां गवर्नमेंट अपना प्रोडक्ट सर्च करके कंपेयर करके बाय कर सकती है। बट ये गवर्न होता है रूल 149 ऑफ द जीएफआर के अकॉर्डिंगली। अप टू डेट यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड फॉर बाइंग, मॉनिटरिंग, सप्लाईज एंड पेमेंट। So it's a user-friendly portal where government can able to buy their goods, monitor कर सकते हैं अपनी activities को, and payment can also be released. Order process registered for ease of use. Option to provide multiple consignee location and quantity after authentication. अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेजर प्रोक्योरमेंट कर रही है, अगर कोई हेड ऑफिस अपना प्रोक्योरमेंट कर रहा है और वो चाहता है कि मल्टीपल प्लेसेस पे गुड्स डिलीवर हो, तो जैम ये ऑप्शन उन्हें प्रोवाइड करता है
कि एक सिंगल प्रोक्यूरमेंट जिसमें कि डिलीवर मल्टीपल प्लेसेस पे हो, तो ये ऑप्शन जैम के थ्रू इजीली ऑप्ट किया जा सकता है, जहां पे प्रोक्यूरमेंट तो सिंगल होगा बट जो कंसाइनी लोकेशन है, डिलीवरी लोकेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. Bunching of product and services can also possible on the GEM portal. What do you mean by bunching? Bunching का यह मीनिंग है कि अगर मैं कंप्यूटर बाय करना चाह रही हूँ, या अगर मैं सर्विस बाय करना चाह रही है कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अकाउंटेंट भी हायर करना चाह रहे हैं, वो क्लर्क भी हायर करना चाह रहे हैं, वो अदर ऑफिस स्टाफ भी हायर करना चाह रहे हैं, तो वो उनके इस पर्टिकुलर बाइंग के लिए या हायरिंग के लिए सेपरेट बिड फ्लोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो एक सिंगल बिड फ्लोटिंग के थ्रू भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, तो बंच भी कर सकते हैं. बंचिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब सेपरेट बिड फ्लोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बंच करके भी एक साथ वो अपने सारे मैन पावर का प्रोक्योरमेंट या जितने भी प्रोडक्ट उनको रिक्वायर्ड है, बंचिंग करके सिंगल प्रोक्योरमेंट के थ्रू वो बाय कर सकते हैं. की एडवांटेजेस फॉर सेलर. अभी जो मैंने एडवांटेजेस आपको एक्सप्लेन करे वो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कि किस तरीके से बायर के लिए अपॉर्चुनिटी है. सेलर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो सेलर को अलग अलग मीडिएटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें किसी मिडिल मैन को रखने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से इस पोर्टल पे रजिस्टर करके, not only register, after registration we have to list our प्रोडक्ट. अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हैं तो अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, और अगर हम सर्विसेज में डील करते हैं तो वी हैव टू लिस्ट अवर सर्विसेज इन विच वी आर डीलिंग, ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता लग पाए कि हम क्या सर्विसेज देना चाह रहे हैं उनको. तो फर्स्टली डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वन स्टॉप शॉप फॉर बिड, रिवर्स ऑक्शन ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज. एक ही जगह पे सारा हो. इस पोर्टल पे अगर टेंडर भी हो रहा है तो रिवर्स ऑक्शन भी जैम पोर्टल के थ्रू ही हो रहा है. रिवर्स ऑक्शन के लिए हमें किसी सेपरेट पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है. सारा प्रोक्योरमेंट एंड टू एंड इसी पोर्टल के थ्रू होगा. डायनेमिक प्राइस कैन बी चेंज बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन. सपोज कीजिए आज हमारा प्राइस कुछ और है, इफ वी वांट टू इंक्रीज अवर प्राइस बिकॉज मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई है, so we can able to change it accordingly as per the market condition, because जो यहाँ का प्राइस होता है वो डायनेमिक होता है. स्ट्रॉन्ग वेंडर रेटिंग सिस्टम. यहाँ पे Amazon एंड फ्लिपकार्ट की तरह ही आपको रेटिंग मिलती है, बट यहाँ रेटिंग कौन देता है? यहाँ रेटिंग सेलर्स, एमएसएमई स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट देती है. और गवर्नमेंट आपको रेटिंग किस बेसिस पर देती है? कि आपने क्या सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की है. अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 ईयर का है, आपने 1 ईयर में सक्सेसफुली सर्विस उनको एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस अगर प्रोवाइड की है तो आपकी रेटिंग अच्छी होगी. अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं प्रोवाइड की है तो आपकी रेटिंग अकॉर्डिंगली डाउन होती है, और रेटिंग से आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड फॉर सेलिंग, मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई एंड पेमेंट. सो सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड कैसे है? अगर आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट करे, आपको ऑर्डर आएगा तो यू रिसीव द नोटिफिकेशन on your registered email ID and mobile number. You need to log in your जैम account. You need to check कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे आया है या नहीं. तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आया होगा तो वो शो होगा. अगर आप गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं तो यू नीड टू अपलोड द इनवॉइस ऑन जैम पोर्टल. एमएसएमई स्टार्टअप्स को जो भी अपने इनवॉइस हैं उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड मैनुअली देने की जरूरत नहीं है. इट्स अ यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड. सो आपको जो इनवॉइस है वो जैम पर ही अपलोड करने हैं, एंड जैम के थ्रू ही वो इनवॉइस इसके पास जाएगा, बायर के पास. एंड बायर नीड्स टू डाउनलोड द इनवॉइस ऑन द जैम पोर्टल एंड दे नीड टू प्रोसेस इट अकॉर्डिंगली. मैनुअली हमें इनवॉइस सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बायर जब इनवॉइस डाउनलोड करेगा एंड जब गुड्स उसे रिसीव हो जाएगी तो बायर एक डॉक्यूमेंट जनरेट करता है जिसे हम बोलते हैं CRAC, कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट. दिस इज द डॉक्यूमेंट विच इज जनरेटेड बाय द बायर. बट वो कब जनरेट करता है? जब उन्हें गुड्स रिसीव हो जाती हैं. और ये डॉक्यूमेंट बायर कब जनरेट करता है? जब गुड्स रिसीव भी हो जाती है
एंड वो चेक कर लेता है कि वेदर इट इज ओके और नॉट। वेदर इट इज ओके और नॉट। तो गुड्स रिसीव होने के बाद में भी बायर एक डॉक्यूमेंट जनरेट करता है जिसे बोलते हैं CRAC। तो सीआर अगर हमने कुछ डिफेक्टिव गुड्स डिलीवर किया होता है तो CRAC के थ्रू बायर उसे रिजेक्ट कर सकता है। एंड अगर हमारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज ओके हैं तो CRAC पास होने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो पेमेंट अथॉरिटी ऑफिसर के पास चला जाता है फॉर मेकिंग द पेमेंट। जैम पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और कोई भी न्यू प्रोडक्ट होता है तो जैम विल बी एनरोल द सेम। न्यू ऑन जैम शॉर्ट shows list of new product category added। सो जैम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि OEM होते हैं। OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सो कोई भी MSME जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, कोई भी स्टार्टअप जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो जैम पे एज ए मैन्युफैक्चरर लिस्ट करते हैं। अगर कोई ट्रेडर है तो वो एज ए ट्रेडर लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को, सर्विस प्रोवाइडर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। बट मैन्युफैक्चरर को एज ए OEM जैम पे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है। तो OEM कैसे जस्टिफाई होगा? अगर डेल अपने प्रोडक्ट जेम पे लिस्ट करने वाला है, या कोई भी ब्रांड हम ले लें, फर्नीचर में नीलकमल अपने प्रोडक्ट जेम पे लिस्ट करना चाहता है, तो नीलकमल एंड डेल बोथ आर द मैन्युफैक्चरर। सो उन्हें अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरर क्लेम करने के लिए जेम पे OEM लेने के लिए एक प्रोसेस करना होता है जिसे हम बोलते हैं वेंडर असेसमेंट। तो वेंडर असेसमेंट कोई भी मैन्युफैक्चरर जो अपने आप को OEM क्लेम करना चाहता है तो उसे वेंडर असेसमेंट करवाना होता है। क्योंकि जैम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई पर्सनल विजिट नहीं होती है। तो वेंडर असेसमेंट के थ्रू गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है कि आपके पास प्रॉपर फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, प्रॉपर लाइसेंस है टू प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन द गुड्स, प्रॉपर मैन पावर है, आप प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स या फिर सेफ्टी मेजर ले रहे हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी है। तो ये सब गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है? वेंडर असेसमेंट प्रोसेस के लिए। तो वेंडर असेसमेंट प्रोसेस जैम पे हमारे एज ए प्रोफेशनल भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने क्लाइंट्स को इसमें गाइडेंस या सर्विस प्रोवाइड करें। वेंडर असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं OEM भी बोलते हैं। OEM सर्टिफिकेशन लेने को हम बोलते हैं वेंडर असेसमेंट लेना। इट्स अ 1.5 month प्रोसीजर जो कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द डेस्कटॉप असेसमेंट एंड द सेकंड इज द वीडियो असेसमेंट। पर्पस क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो सीधे आके जैम पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करता है, उसे सबसे पहले OEM सर्टिफिकेट लेना होता है। और OEM सर्टिफिकेट को लेने को बोलते हैं OEM लेना जैम पे। और ये OEM सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? जैम ने ये वर्क आउटसोर्स किया हुआ है राइट्स को। तो राइट्स नाउ एलिजिबल टू असेस यू वेदर आपके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग साइट, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस सब कुछ है जिसके लिए आप जो भी एक मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए। तो जब राइट सर्टिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आपके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, सेटअप है, तब राइट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे हम बोलते हैं OEM सर्टिफिकेट। तो OEM का प्रोसेस क्या होता है? 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज डेस्कटॉप असेसमेंट पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द वीडियो कॉल पार्ट। तो वो वीडियो कॉल नॉर्मल विजिट भी हो सकता है अगर वीडियो कॉल पे राइट्स टीम सेटिस्फाइड नहीं होती है, आपने जो पूरा सेटअप शो किया है, अगर उन्हें कहीं पर भी 1% डाउट होता है तो दे कैन एबल टू कम एंड विजिट योर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फिजिकली। 99% इट्स 100%, 99% आपका ऑनलाइन ही रहता है। बट अगर वीडियो कॉल में उन्हें 1% भी डाउट होता है तो दे कैन विजिट योर फैक्ट्री प्रीमाइसेस मैनुअली। सो 2 पार्ट्स में हमारा वेंडर असेसमेंट कंप्लीट होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट
एंड द सेकेंड वन इज द वीडियो असेसमेंट. सो डेस्कटॉप असेसमेंट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेस फ्लो, आपका जो रॉ मटेरियल होता है आप किस तरीके से कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, कैसे आप अपना पूरा प्रोसेस करते हैं, कोई भी स्क्रैप होता है तो आप उसे कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग अलोंग विद योर सर्टिफिकेशन आपसे डिमांड किए जाते हैं. एंड व्हेन यू प्रोवाइड देम, जब डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट होता है तब आपको एक वीडियो कॉल का डेट असाइन होता है एंड आपको अपने प्रोडक्शन मैनेजर के थ्रू वीडियो कॉल कंडक्ट करवाना होता है गवर्नमेंट का. एंड वीडियो कॉल पे पूरी फैक्ट्री एज अ फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू ही, जैसा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है इक्वलेंट ही आपका वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन होता है जेम पे. सारा डेटा, सारे मैन पावर, फैक्ट मशीनरीज कैसे वर्क कर रही है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सब कुछ चेक किया जाता है वीडियो कॉल के थ्रू. सो ओईएम एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये एक मेजर सर्टिफिकेशन है जिसकी वैलिडिटी 3 years की होती है, जो कि ओनली मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड किया जाता है. तो अगर आप जेम पे ओईएम लेना चाह रहे हैं कोई भी एमएसएमईज, तो उन्हें वेंडर असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होता है. क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी वेरिफिकेशन होता है सेलर का, मैंडेटरी है ओईएम लेना कुछ कैटेगरीज के लिए. कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट एम्पेलेंट एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन एनेबल है ये करने के लिए, राइट्स को गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है टू डू द वेंडर असेसमेंट ऑन द जेम पोर्टल. एनहांस बायर कॉन्फिडेंस, कैसे बायर का कॉन्फिडेंस एनहांस करती है, मैं आपको शो करती हूँ अभी. कि अगर सपोज कीजिए कोई भी प्रोडक्ट लिस्टेड है जेम पे और वो वेंडर असिस्ट है, मतलब ओईएम उन्होंने ले रखा है, तो जेम पे क्लियरली आपको लिखेगा कि दिस इज द वेंडर असिस्ट. तो बायर के लिए कॉन्फिडेंस एनहांस करना, अगर कोई भी प्रोडक्ट वेंडर असिस्ट है इट मीन्स गवर्नमेंट ने वेरीफाई कर लिया है कि वो प्रोडक्ट प्रॉपर है, उसमें उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं है. क्योंकि राइट्स ने अगर सर्टिफिकेट इशू किया है इट मीन्स दे वेरीफाइड ऑल द इंफॉर्मेशंस. एप्लीकेशन थ्रू जेम पोर्टल के थ्रू हमें राइट्स को अप्लाई करना होता है. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिफिकेशन होता है, साइट विजिट होता है, एंड असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड अप्रूवल. जब आपका डेस्कटॉप एंड वीडियो असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको रिपोर्ट मिल जाती है. Ma'am, we may kindly यस request you to proceed towards the concluding remark. डेफिनेटली मैम. ओके. So today we learn that how the government e-marketplace portal is useful for as a chartered accountant, as a professionals, and also for MSMEs and startups. So MSME के लिए 25% of the total procurement government को जेम के थ्रू एंड MSME से करना कंपलसरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस EMD एग्जाम्पशन MSME क्लेम कर सकती है. एंड एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर एग्जाम्पशन आप जैम के थ्रू एमएसएमई एंड स्टार्टअप क्लेम कर सकते हैं. और जैम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कितने तरीके के प्रोक्योरमेंट मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट परचेज, सेकंड इज L1, एंड थर्ड वन इज पुश बटन प्रोक्योरमेंट, फोर्थ वन इज बिड, एंड लास्ट वन इज बेसिकली PAC बिड. लास्ट वन इज द PAC बिड. सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली वर्क लेना चाहते हैं तो हम इस पोर्टल को यूज करके डायरेक्टली विदाउट एनी मिडल मैन हम बिडिंग ऑप्शन में जाके या फिर हम अपनी सर्विसेज लिस्ट करके एज ए MSME ऑल्सो इफ वी आर कवर इन द MSME criteria, so we can able to get the work through GEM portal. So not only we can suggest our client that this portal is useful to them, we can also able to use this portal by इस पोर्टल के थ्रू हम गवर्नमेंट को सर्विसेज देके भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देकर भी हम इस पोर्टल का बेनिफिट ले सकते हैं. सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you, CA Shilpa ma'am, for the highly Thank you. informative and practical session. Now we'll take some questions. From Yes, Bhopal, ma'am. CA Prabhakaran has asked, is there any prerequisite of experience or existence to register on GEM? No, ma'am.
everyone can able to register, even if अगर आपकी नई कंपनी है, 7 days पहले ही incorporated हुई है आपकी कंपनी, so you can able to register. There is no restriction on GEM to register as a seller on the GEM portal. Okay, from Hyderabad, it is asked that is GST certificate mandatory for registration on GEM portal? मैम, इफ योर टर्नओवर इज क्रॉस दी मैंडेटरी क्राइटेरिया जहाँ पे जीएसटी मैंडेटरी है, तो आप मैंडेटरी है आपको जीएसटी अपडेट करना। लेकिन आपका टर्नओवर जो जीएसटी के लिमिट के अंदर है, आपका टर्नओवर बिलो 20 लाख है या बिलो 40 lakhs है, सो यू नीड नॉट टू गेट द जीएसटी सर्टिफिकेट। आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के भी जैम पे रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी। Okay, from Lucknow, Mr. Uh, मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। yes, ma'am. Now audible? यस। Okay. Whether PSUs are also required to procure goods and services through GEM portal? यस मैम, एज पर द GFR 149 सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है एंड PSUs के लिए भी मैंडेटरी है। बट अभी वो मैंडेटरी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग रहा है, ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है, बिकॉज एकदम जैम पे शिफ्ट होना इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट। बट ग्रेजुअली सारे प्रोक्योरमेंट जैम पे शिफ्ट हो रहे हैं मैम, एज पर GFR 149। Okay. Under which category we can search the CA services? मैम, बेसिकली इट्स एन नॉन प्रोफेशनल IT सर्विसेज, नॉन IT प्रोफेशनल सर्विसेज। Okay, ma'am. And one last question. Someone has asked that I have trouble creating my profile on the GEM portal. It is shown that my firm is already registered. However, I have never registered. Whom should I contact? मैम, बेसिकली आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो कि लोग फेस करते हैं। आपने रजिस्टर नहीं किया है, बट द रजिस्टर्ड ये जो हुआ है, आप लोग जब MSME सर्टिफिकेट बनाते हैं, उद्यम तो सब लोग ही बनाते हैं अपना MSME सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन देयर MSME सर्टिफिकेट, वहां पे एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल ऑल्सो। अगर उन्होंने MSME बनाते समय वहां पे जैम पे यस किया है, तो इट मीन्स वो जैम पर भी एनरोल हो चुके हैं। तो उनका सोल्यूशन ये है कि वो अपने उद्यम नंबर को एज ए यूजर आईडी यूज करते हुए जैम पे जाएं और वहां वर्क करें। और फिर भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल रिजॉल्व द सेम ऑल्सो। Thank you. Thank you, Shilpa ma'am, for the wonderful session. थैंक यू मैम। We now move to second session, which covers an equally important and much discussed topic: new labor codes. The new labor codes aim to simplify existing laws, enhance ease of compliance, and redefine employer-employee relationships. For chartered accountants, clarity on applicability, implementation, and transition issue is critical. It gives me a great pleasure to introduce our speaker for the second session, CA Sunil Kumar. CA Sunil Kumar is a chartered accountant with over 14 years of professional experience practicing since 2011 and holds multiple qualifications including ES, LLB, MCOM, DISA, and Insolvency Professional Registration with IBBI. He has deep expertise in taxation, labor laws, real estate, RERA, and insolvency matters, and is empaneled as a peer reviewer with ICI. He is a regular faculty on labor laws and also known for delivering practical, compliance-focused training for professionals and business leaders, blending strong legal insight with real-world business understandings. I request CA Sunil Kumar to kindly take over and address the participants on new labor codes. Over to you, sir. Thank you, madam. Good afternoon, everyone. Today it's a very important topic, new labor codes. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Yes, please. Thank you. So today we will discuss about the new labor codes and we will highlight some important changes and some important provisions under the new labor codes and some
provisions were existing in the old laws, but no focused by the employers. So today we will discuss. So now I'm sharing my presentation. Let me allow, please. Whether it is visible? Yes, sir. Yes, sir. Just make it full screen. What, sir? Thank you. So now we will discuss about the labor codes. We all know all the 4 labor codes were notified on 21st November 2025. So we will discuss here some important parts. We will discuss. We will start from the code on wages 2019. So is 19, 4 major laws were subsumed in this Payment of Wages Act, which monitors about the payment of wages, and Minimum Wages Act, which focus the minimum wages payment. Third one is payment of Bonus Act, and next one is Equal Remuneration Act. So all these 4 codes were consolidated in this. My screen is now. Am I audible, sir? Thank you. So we were discussing about the act subsumed in the under the Code on Wages 2019. The Payment of Wages Act 1936, which regulates the timely payment of wages to the employed persons. Under the new labor codes, the payment of salary time has been changed, and it has been synchronized, and it has been unified. So we will discuss some important provisions. Sir, I think there's some problem. Yes, please. So we will discuss some important definitions. So we know the very important definitions are wages under Section 2, Clause Y, and we will highlight some on contract labor definitions under Section 2, Clause G. In the new labor codes, there are 26 definitions from Clause 8 to Clause Z. The understanding these definitions is very important because it will impact on the financial compliances as well as other compliances. So we will discuss here. Who is the contract labor? So the definition has been clarified. Means a worker who shall be deemed to be employed, and some very important part is with or without knowledge of the principal employer. Where principal employer cannot take defense. He is not in knowledge who is the worker appointed by the contractor. So it's a very important part. Whether it is in the knowledge of the principal employer or not in the knowledge of employer, it will be deemed as contract labor. And very important part, and includes interstate migrant workers. If any interstate migrant worker is here, then it will also be included in the contract labor. Here we will have to understand the interstate migrant worker, because there are some slightly change in the definition of interstate migrant worker under this code. Earlier, the person from other states recruited by the contractor was treated as interstate migrant worker. But now, if any worker comes from another state through its own, even without the contractor, even it will be included in the definition of interstate migrant worker, and it will be part of the contract labor. So under these codes, employer has to take care whether the worker is interstate migrant worker or it is a worker in that state.
So in case of contract labor, there are हाँ three things. पता कुछ नहीं बस खाना ही खाया था Sorry, anyone is interrupting, please. So, we are discussing principal employer, contractor, and contract labor. There are three components. The establishments where the worker is working, it is called principal employer, and the contractor is the immediate party who supplies the workman or who execute the work on behalf of or for the principal employer, and contract labor is the workman employed by the contractor. So, under these codes, it is very important to understand the definition of contract labor or specifically the interstate migrant workers. We will discuss later. Second definition is under clause 2y, section 2, clause y, definition of wages. Very important definitions. There are three parts. First means all non-remuneration. Second includes the components. And third is the components which exclude, which does not include. So, first we understand whether what is the meaning of wages. So, whatever is payable to the employee in terms of his employment, it will be called the basic wages. It will be called the wages. But three components are specifically included: basic pay, DA, and retention allowance, and A to K. So there are certain clauses from clause A to clause K. It will not be included in the definition of wages. And first proviso are there. If any exclusions are exceeded from 50% of the total remuneration, then it will be added back to the basic wages. So we have to understand, and we will understand the impact of the changes in this definition. We understand with the example. We take example, if any employees is taking salary of rupees 60,000, out of which basic is 20,000 and other allowances is to be 40,000. Then total salary is 60,000. But by changing the definition of wages under clause 2, under section 2 clause y, is the wages will be deemed as 30,000. How? If 50% of the total salary is 60,000 divided by 2, it will be 30,000. And excess of 50% over basic, here basic is the 20,000. So it is the excess, means excess amount is to be 10,000. 10,000 will be added back to the salary. The existing salary 20,000 and 10,000 will be added back to the salary. Then the salary for the purpose of the benefits and others will be treated as 30,000. So it will impact on number of things. For example, in case of PF, we will understand in two parts: coverage as well as the benefit. For example, in case of PF, there are no changes in the coverage, but in the liability for computation of PF liability, it definitely will impact. If there are ceiling limit, we all know employers are not bound to pay from salary above rupees 15,000. It is the voluntary basis, but it is kept to pay only rupees 1,800, yani 15,000 cut 12%. Gratuity, it will change the gratuity liability also, because at present gratuity is paid on basic, only paid on the basic and DA. But if this definition we recalculate the gratuity amount payable, we will have to change the past services also. For example, in this case, if this employee is working last 10 years, so it will impact the gratuity, because earlier gratuity liability provision was made on 20,000. Now it will have to recalculate on 30,000. So it will impact on gratuity also. So here we understand the minimum wages also. Key wages should not be less than the minimum wages. So what will be the wages? Wages will be taken as from the definition under section 2 clause y. Overtime wages, it will change it will also impact on the overtime cost.
We know if any overtime is executed done by the employee, it will be paid by the twice rate. Then what will be the rate? It will be calculated under the it will be calculated under the definition of 2y and 2 plus y. Bonus eligibility. We will highlight the two parts. It will coverage as well as the computation liability. We know that 21,000 is the limit for checking the coverage of rupees 21,000. We will have to compute the wages under section 2 clause y. And we have understood earlier the provident fund and gratuity liability also. So wage definition is very important from financial point of view, and non-financial point of view, we will check the difference between workers and salary. We know that there are slightly difference in the worker or in the employee. Employee, if any person is drawing salary more than rupees 15,000 and in is the capacity of supervisory or administration, then it will not be included in the worker. So to determine whether he is an employee or worker, so in case of employees working under the capacity of supervisory or administration, we will have to understand the definition of wage also. So it will not impact minimum wages or overtime and others. It will also impact on the differentiate between employee and worker. So it's a employers or establishments should reconsider, recalculate whether who will fall under the definition of worker or who will fall under the definition of employees. New important changes are one concept of floor wages. Concept of floor wages has been introduced by the central government. What this section says, whatever minimum wages has been decided, specified by the state government, it cannot be less than the floor wages as specified by the central government. So, to fix the floor wages, central government will consider the geographical areas and other things. Now the question arises, if the state government minimum wages is higher than the floor wages, whether state government can reduce their wages to floor wages? No. If the state government minimum wages is higher than the floor wages, then it will be the state government the minimum wages decided by the state government will be taken as the minimum wages, not the floor wages. So we have to understand the floor wage versus minimum wages. It's a very important thing. Minimum wages cannot be less than the floor wages. However, minimum wages can maybe more than higher than the floor wages. Now we move on the normal working day, section 13, hours of work. It's a very important. The code specified it has been referred in the rules which hours will constitute the normal working day. Draft rules has been notified by the government. For workers, it's a normal working at 8 hours in a week, 8 hours in a day, and 40 hours for a week. We will discuss about the rest interval and spread over. It's not clarified here. We will discuss later. Section 14, it's a highlight the overtime wages. Earlier it was also the provision, but here it has been clarified that overtime wages will be paid twice. It's a very basic confusion among the establishments that whether overtime wages clause is applicable to workers or it is applicable to employees. It is applicable to both employees or workers, no matter whether it is a worker or employee. If any employee works overtime, it will be paid by the twice rate.
So here we should also maintain the records, and it's a very important. We will have to obtain the consent also. But there are certain things we have to consider regarding the overtime wages, because under the OSH code, we will discuss here, the workers overtime has been covered, and under we will discuss the SOP Act, which will cover the overtime regarding the employees. Payment of wages. There are very important changes in this act. If earlier there are certain provisions up to 1,000 employees, it will be paid by 7th of the next month, and if there are more than 1,000 employees, then it will be paid by the 10th. But now it has been unified. If it is a monthly employee, it is the monthly based employee, it has been paid by the 7th of the next month. If it is a daily basis employee, it will be paid by the end of the day. If it is a weekly employee, so it will be paid by the end of the last working day of the week. And if it is a fortnightly basis, it will be paid within 2 days of the end of that fortnight. And very, very important things are there. If any employee has been dismissed or removed from the service, then the full and final settlement within 2 working days of his removal. It's a very important change. The employer will have to take care of that, and HR will have to prepare the workings. Also, if any employee is removed, then within 2 working days, full and final settlement has been will be done by the establishments. Second, now we move on the record returns and notices. Very, very important things we will highlight here. Of registers. In draft central rules of in code on wages and form 1, employee registers. The content of if we review the content of employee register, there are certain changes in the records which will have to maintain by the employers. So it is not only a small details. It will look from appointment to termination. All the records, all the details we will discuss here. Okay, what contents will be included in the employee register. So it's a very important. And wage slips. It's a very, very important. Employer will have to issue the wage slip, and in the draft rules, it will have to be issued by the within 20 hours before the date of payment. It means if we say in simple terms, if by the end of the month, by the 7th of the month, we have to pay the salary, so the salary wage slip will have to be issued by the 6th. And there are format in the rules. Okay, which content will be included in the wage slip we will discuss here. And some display of notices. It was earlier also provision. Very important parts. This section under section is not applicable only in cases where up to 5 employees are employed for the purpose of agriculture and domestic purpose. It means if employees are for other purpose, then there are no limit, or this limit is only for these purpose, not regarding the payment of wages. So there are certain confusion whether code on wages is applicable to establishments where 10 or more employees, where 2 or more employees. Nothing has been mentioned in the law. Only for this purpose, it has been mentioned this section that these provisions is not applicable in case of employees for not more than 5 for agriculture and domestic purpose only. So it seems that this code on wages is applicable to everyone, irrespective of the number of employees, because this section is only for that purpose. So regarding payment of wages, regarding the deductions, the code on wages is applicable to every establishments. So it will have to take care regarding the salary payment. It should be paid on time, irrespective of the establishment as 1 employee, 2 employees, and 10 employees.
We know the penalties has been enhanced and increased. Monetary penalty up to 50,000 to 2 lakh, and repetitive it will be enhanced, and the imprisonment up to the 3 months are there. I have mentioned here some rules of draft center. I have taken some points from the draft center rules. So weekly day of rest, it's a mandatory. Within 7 days, 1 day should be rest there. And the salary should be paid for that rest day. And if due to any reason the employee worker works for that day, it will be compensatory leave. A compensatory rest will be paid to that employee in this regard. So now I have mentioned the contents of employee registers under the draft rules, under the code on wages rules. So I highlight some points here. I have categorized some details. There are 35 to 36 points in the employee register form. So I have categorized in 7 categories: establishment employee details, employee identity details, employment particulars, wages and compensation structure, and statutory identifiers, bank and payment details, and a very important part, exit and separation details. If we see in exit and separation details, here reason for leaving also important. It has been mentioned that what is the date of separation and what is the reason of for leaving. So the compliance part and documentation part is very important. When HR, when employee is leaving, the HR should maintain the records. Okay, why, whether he has resigned or whether he has been dismissed, what is the reason. Second important part is the wage and compensation structure. Establishment have to maintain for what grade he has been appointed, what is the salary, whether it is the daily basis, weekly basis, fortnightly basis, monthly basis, it will be maintained. And employment particulars, the category, whether it is a highly skilled, semi-skilled, well, temporary, permanent, contract, everything about the employee, it will be recorded under the employee register. So under the establishment will have to carefully review the employee registers and will maintain the records. Will take the supporting documents before filing the details under that registers. So it's a very important. I have prepared here a summary form regarding the employer compliance. What has to be done by the employers. So from the registration to written filing, we have identified some points. He has to obtain the registrations if required. He has to restructure his wages if it is not as per the section 2 clause Y. He has to maintain the records, registers. It has to display the notices under the provisions. It has to make the payment timely, and it's important if it is paid by the bank also, it will be preferred. And the return filing, very important part under the 4 labor codes. A single return has been unified and has been specified. The content are there in the draft rules. We will discuss later. Now we move on the Code on Social Security 2020. In this act, there are total 15 chapters and 164 sections and 7 schedules. We will discuss regarding the very important changes under the ESIC Act here. Section 1 describes about the applicability. We will have to understand there are certain confusion among the establishments whether this act is applicable to that or not. It is applicability of this code is different from the Code on Social Security, Code on Wages. This act has the number of chapters, and the chapter which chapter is applicable, it has been specified in the schedule, and it the number of employees, the thresholds will make the reason, make the cause of the applicability of this that part of the code.
For example, ESIC part will applicable to 10 plus employees. PF part will applicable to 20 or more. So Social Security code in whole is not applicable to everyone. It depends on the threshold limits. But code on wages, there are no any threshold. Code on wages is applicable uniformly. So we will have to check that. Here we will discuss only two important definitions. Section 2, clause 28. Section clause 28, employment injury has been defined. Why I have been mentioned here? Because in there section 34. There section 34, there presumptive provisions are there. It has been included in that section. If any employee is moving from home to office and vice versa, will be considered as the arising in the or arising out of the employment. So it will be covered under the employment injury, section 2, clause 28. So the risk has been increased of the employer risk has been increased. If it is been covered under the ESIC, then it will be safe to the employers. If employee is not covered under the ESIC, so it will be better to take workman compulsory policy or others to ensure that employee, because now the employee risk will start from the when employee leave the home. Section 17. It has removed the confusion regarding the contractor liability or employee principal employer liability. Okay, who will pay the social security benefits, specifically PF or ESI? It has been mentioned here. Okay, principal employee will pay and recover from the contractor if he does not pay. So there are no any confusion. It is specifically mentioned. Principal employer will recover from the contractor and will pay the timely. So it is a primary liability contractor, but principal employer also it is pay, will monitor whether it is being paid or not. Otherwise, principal employer will pay. Section 28, mandatory insurance of employees. Very important to be checked. Section 28 says that the employee on which this provision is applicable should be insured. At present, there are ceiling. If their salary rupees 21,000, ESIC provisions are applicable. So first thing is to check that due to change in the definitions of under section 2 clause Y, the coverage will be coverage may be enhanced. Earlier under the ESIC law, the definition of wages was different. It was the gross salary, but now it has excluded the number of components. So in earlier example, what we have said, if any employee, if that employee was taking 60,000, it will not be covered. But if in that case, if employee was getting 40,000 and 50%, if there are basic, so if the salary for the purpose of ESI would be 20,000. So it should be covered under the definition of, it should be covered under the provisions of ESIC. So employer will have to review whether even employee gross salary is more than 21,000. But if it falls up to the ceiling limit 21,000, it will be covered under the ESIC provisions. And second important part is how to when it has to be registered for new employee, it will be registered from the day one. Under the rules, it has been specified. It will be the Aadhaar based registration, and temporary insurance number will be allowed on the same day, and within 30 days employer will have to update the details. So
any employee joining which falls under the ESIC provisions should be registered on the same day. So it is very, very important. Section 31 discuss about the contribution liability. We know the 3.25% is paid by the employer and 0.75% is paid by the employees, and total 4% are paid by the employer. But one thing is to be noted regarding the contractor employee, principal employer is to pay for both for his regular employee as well as on employee. We highlight, we discuss the very, very important provision, section 42, ESIC recovery powers. So we are discussing here the establishments which are doing the ESIC compliances, they don't monitor how what details have been mentioned on the portal. Under section 42, what says? It says that if employee is deprived from the benefits of ESIC due to employee's default, due to employer default, either by non-contribution or delay in the registering, or by late registration, then ESIC will provide the benefits, but it will recover that benefits from the employer. तो हमें यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि ये जो डिले करने की जो कीमत हो सकती है, जो लायबिलिटी हो सकती है, जो वो बहुत ज्यादा आएगी, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वी विल हैव टू टेक केयर, विल हैव टू टेक प्रिकॉशन. No, any single employee, if it falls under the ESIC coverage, should be unregistered or uninsured. I give an example. If any employee falls sick and either accident में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, और अगर कोई घटना हो जाती है और उसको इंश्योरेंस नहीं कराया, टाइमली इंश्योरेंस नहीं कराया, और उसको ESIC से बेनिफिट जो मिलना था, जितने लेवल का उसको मिलना था, वो उसको नहीं मिल पाया, तो ESIC उसको तो पे करेगा अगर वो एलिजिबल है. बट जो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी, मान के चलिए वो एम्प्लॉय 30 साल का था और 30 साल शेड्यूल दे रखी है फैक्टर निकला, उसके बेसिस पे उसको मानो टोटल पेमेंट 30 लाख रुपए का ESIC द्वारा किया गया, तो इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर. तो इस सेक्शन 42 को बहुत अच्छे से ध्यान से एम्प्लॉयर को एस्टेब्लिशमेंट में देखना पड़ेगा कि कोई भी एम्प्लॉय विदाउट इंश्योरेंस ना रहे, तो इट विल बी रिकवर्ड बाय द ESIC फ्रॉम द एम्प्लॉयर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव हाइलाइटेड हियर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द gratuity. I have covered two important provisions, section 54 and 57. 54 as the old provisions, the 5 years, what is the continuous service. If employee has completed 5 years or 1 year, then there are no issue. But in certain cases, there are less than the 1 year or 5 years. Then the rule says if there are 6 days week working, then 240 days the employee has worked, then it will be treated as 1 year. And in case of less than 6 day week or means 190 days will be treated as 1 year also. What is the changes under the section 57? Compulsory gratuity insurance. It's a very very important thing. अभी प्रेजेंट में क्या प्रैक्टिस है कि केवल प्रोविजन, बाय मेकिंग द प्रोविजन वी टेक द एक्सपेंसेस, वी टेक द claim of expenses of gratuity. We don't pay, we don't take the insurance policy. We certain entities make the on trust and under the take the policy. This section specifies कि आपने अगर कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है और ट्रस्ट के अंदर पॉलिसी ली हुई है, बहुत इट्स वेरी गुड.
बट आपका रजिस्ट्रेशन ग्रेचुटी में जब तक नहीं होगा जब तक आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है। तो फर्स्ट employer establishment will have to obtain the insurance, gratuity insurance, then will have to apply for registration. Earlier there was no any liability to pay if employer does not obtain the insurance or does not pay the premium, then it will have to pay the amount to the appropriate government, to the authority with interest if it is the delay. So this provision ensure if in case of insolvency or any other reason employer establishment is not able to pay the amount, the insurer will pay the gratuity to the employee. So it is very important. One important change are there in case of fixed term employees. 1 year period has been specified. If fixed term employee के लिए 5 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो 1 साल भी जॉब करता है तो भी वो उसके लिए ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन करना मैं भूल गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिक्स्ड एम्प्लॉय वाज इज एलिजिबल आफ्टर 1 year. Very important things, 3 concepts are unorganized worker, gig and platform worker, and has been introduced in the social security codes. One important point I will have to explain here regarding building workers. बिल्डिंग वर्कर्स 18 years से लेके 60 साल तक का कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है, मजदूर बिल्डिंग वर्कर काम कर रहा है, इफ it has worked 90 days or more in the last 12 months, he is eligible to register as a beneficiary. But what is the important here? The contractor or has to ensure that the builder worker working with that builder or contractor has to be registered. So why I have highlighted here, if we read the law rules and law, that employer's liability, contractor liability is here. Building worker should be registered as a beneficiary if he is eligible. So there are a number of benefits. So at present, government has noticed that if the building workers are not able to take the benefits under the number of different schemes, so it is liability has been framed on the establishments as well as the contractor to ensure the builder worker registered as a beneficiary. And on the same line, this liability has been provided to aggregators also. In case of building workers, we say that employer establishment will have to pay the 1% labor cess on the building cost, on the construction cost, and from that cess amount, state board provides a number of benefits to the building workers. Now, on the same line, aggregator will have to pay 1% or 2%. Then it has been defined on the of the annual turnover, and same scheme, same benefits will be provided to the gig workers, platform workers, and other workers. So it's a very important to understand to aggregators also. There are no employer-employee relationship even, but we'll have to pay the cess and will have to pay the benefits, and will have to ensure these workers are registered as a beneficiary. Now I highlight some important points under the OSH code. There are certain acts which has been subsumed under the OSH code. The Factory Act, Mines Act, Dock Workers Act, Contract Labor and Regulation Abolishment Act 1970, ISMW Act, BOCW Act, some specific law, and some professional services. So I have subsumed, I have mentioned here. So it's a very important to discuss the Contract Labor Regulation Act. We will discuss here. Section 3 describe about the registration of the establishments. जिस दिन से एप्लीकेबल हो जाएंगे रूल्स आ जाएंगे, उस दिन से विदिन 60 days अपन को रजिस्टर करना होगा पोर्टल पे। श्रम सुविधा पोर्टल पे ये रहेगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ हम देखेंगे इसको कुछ ड्यूटीज
जो एम्प्लॉयर की हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें में से की हुई हैं रिगार्डिंग द सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग, रिगार्डिंग द हेल्थ, regarding the compliance and reporting. But very important point we will discuss regarding the letter of appointment, कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देगा, और एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट लेटर का जो रूल्स हैं, रूल्स में अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है, देयर नंबर ऑफ कंटेंट्स, वो उसको शामिल करने हैं। और जिस दिन से रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे, तो अगर किसी प्रीवियस एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू नहीं किया गया, तो वो विद इन 60 डेज उसको, विद इन 90 डेज, और आई थिंक विद 90 डेज उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को ये ध्यान रखना होगा कि उसकी डिटेल्स क्या है, क्या चीजें हैं, क्या टर्म्स हैं, वो उसको मेंशन उसमें करना होगा। एग्जामिनेशन उसमें रूल्स में स्पेसिफाई किया हुआ है, इट हैज बीन स्पेसिफाइड द रूल्स कि मतलब 40 ईयर्स और प्लस एम्प्लॉय है तो उसका एग्जामिनेशन मेडिकल चेकअप हो, मेडिकल बोर्ड जो प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा। यहाँ मैंने कुछ रूल 7 में जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, मैंने कुछ इंपोर्टेंट चीजें मेंशन की यहाँ पे, कि उसका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, लीव क्या रहेंगी। तो यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करना भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेगा। there are certain changes in the working hours. We have seen the 8 hours or in a day or 48 hours a week. और जो लीव है, लीव ईएल, आई थिंक ये चेंज थे, 20 to 15 डेज हो गया है। आई थिंक पहले 240 डेज पर उसकी लायबिलिटी बनती थी, और वो 180 डेज पर भी उसकी लायबिलिटी बनेगी। चेक करेंगे। नाउ आई विल हाईलाइट द कोड प्रोविजंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के किसमें बहुत चेंजेस हैं, और छोटे छोटे चेंजेस हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। फर्स्ट थिंग इज कि अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या कॉन्ट्रैक्टर 50 से ज्यादा के वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूज करता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूज करता है, तो दिस पार्ट इज एप्लीकेबल। और देन क्या होगा, इस ये पार्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, ये जिसमें कहता है कि उसका पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको तनख्वाह जो उसकी सैलरी वेजेस जो उसको देनी है, वो उसको डिजिटली देनी है, अगर ये पार्ट एप्लीकेबल होता है तो। दूसरा, कि उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इंश्योर करेगा कि इंक्लूडिंग पीएफ, पीएसआई, ग्रेजुएटी बोनस, जो कुछ भी उसकी हैं, वो इंश्योर करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको मॉनिटर करे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो यहाँ पर देखना है, कि अगर कोई जब कॉन्ट्रैक्टर उसको पेमेंट करता है, किसका, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, तो उसको ये इंफॉर्मेशन किसको देनी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देनी है। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये इंश्योर करेगा कि उसका पेमेंट हो गया, और नहीं होता तो रूल्स में आया है, आई थिंक इट इज 15 डेज, विद इन 15 डेज एम्प्लॉयर को उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की। वो उससे रिकवर कर लेगा, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे रिकवर करेगा, बट अब कॉन्ट्रैक्टर वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को डिले नहीं कर सकता। इफ इट इज नॉट पेड बाय विद इन 7 डेज, देन नेक्स्ट 15 डेज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल पे द कॉन्ट्रैक्ट लेबर सैलरी अमाउंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक फॉर बोथ कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की वेजेस है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो उसको टाइमली उसको मिले, डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, और ये जब रिटर्न्स जब जाएंगे उसमें सारी डिटेल जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में, और उसका पेमेंट, उसकी इंटीमेशन रिकॉर्ड्स डिजिटली, वो सब चीजें उसकी टाइम से जाए। नाउ आई विल डिस्कस 2 or 3 पॉइंट्स हियर regarding the contract labor also. कि यहाँ पर जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, पहले 20 और 50, कई जगह पर 20 हर स्टेट्स में अलग अलग था, किसी में 20 था, किसी में 50 था। इसको यूनिफाई कर दिया है कि 50 वर्कर्स जो होगा तो ये कोड एप्लीकेबल होगा, तो उसको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज उसको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है।
पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट भले 50 एम्प्लॉयज पे है, बट पेमेंट ऑफ सैलरी उसको टाइम से मिलेगी, चाहे वो 10 एम्प्लॉय यूज करता है या 10 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, 5 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो जो कंफ्यूजन जो है, ये नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे पास तो 50 एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास मैंने लाइसेंस नहीं लिया है और तो मुझे उसकी मैं सैलरी को डिले कर सकता हूँ। नथिंग, यहाँ उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। सिंपल है कि अगर सैलरी का पेमेंट टाइम से होना है, डिजिटली ट्रांसफर करना है और डिजिटल इंटीमेशन देनी है। हाँ, उसको अगर उसके 50 से कम वर्कर है तो उसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लाइसेंसिंग की उसमें कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं कि उसका रेगुलर पेमेंट हो, टाइम से हो, टाइमली कंप्लायंस करे, कंडीशन से, अदरवाइज उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तीसरा, यहाँ प्रिंसिपल एम्प्लॉय की लायबिलिटी बिल्कुल साफ साफ मेंशन की हुई है कि वो उसको नॉलेज का कि उसको नॉलेज नहीं थी कि उसने किया कि नहीं किया, ये सब चीज़ें रिमूव कर दी हैं। बिल्कुल लॉ में बिल्कुल क्लियर है कि वो पैरेलली लायबल है। अब यहाँ पे मैंने वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का मेंशन नहीं कर पाया, तो मैं कुछ यहाँ पे 2 मिनट में उस प्रोविजंस को भी मेंशन कर देता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में चेंजेस हुए हैं। तो एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, यहाँ पर 20 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, जो वहाँ पे जीआरसी बनानी होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनानी होती है। तो वहाँ पर भी एक छोटा सा चेंज आया है कि if there are women workers also, then proportionate representation from the women should be there in the GRC। तो अगर जो GRC बनी हुई है और वहाँ पर अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेटली नहीं है तो वो वहाँ पे करना होगा। और there are some changes in the strike period also, then 14 days नोटिस, पैड नोटिस इज मैंडेटरी। अगर कोई भी 14 दिन से कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा स्ट्राइक करने से पहले, अदरवाइज इट विल बी पेनलाइज एक्शन मे बी टेकन बाय द अथॉरिटीज फ्रॉम बोथ साइड। सो नो स्ट्राइक इज पॉसिबल विदाउट प्रायर इंटीमेशन। और इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑल्सो, कि पहले ये लिमिट 100 की थी कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर 100 पे एप्लीकेबल होता था। नाउ इट हैज बीन एनहांस्ड टू 300। सो इट इज इजी टू एमएसएमई एंड विल बेनिफिशियल टू एमएसएमई कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज नॉट एप्लीकेबल टिल 300 वर्कर्स। इफ देयर आर मोर देन 300 वर्कर्स, so then model standing provisions will be applicable. So in the whole and whole, if we sum up all these 4 codes, so we see 4 or 5 points here. First, the maintenance of records. एम्प्लॉय की डिटेल हमें टाइम से लेनी है, इंपोर्टेंट लेनी है। जो ईएसआईसी के फॉर्म्स जाती है, जैसे डिटेल्स जाएगी, यहाँ पर उसको सर्टिफाई करना होगा कि ये डिटेल्स मैंने वेरीफाई की है। एम्प्लॉय की डिटेल्स एम्प्लॉयर को वेरीफाई करनी है और फैमिली की डिटेल्स एम्प्लॉय को वेरीफाई करनी है। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी केवल उसकी ईसीआर रिटर्न भरने तक नहीं है, उसके रिकॉर्ड्स, उसके बेनिफिट्स मिलने के लिए उसके जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और जो प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन करनी है वो है। दूसरा, अगर हम नॉमिनेशन फॉर्म देखते हैं ग्रेचुटी में, ईएसआईसी में, पीएफ में, एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म आया है। तो यहाँ पे भी इसको एक्नॉलेजमेंट देनी है, टाइम से उसको कॉपी देनी है एम्प्लॉय को, और उसकी कंसेंट भी, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी उसको मेंटेन कर रही है कि वो टाइम से उसको दिया है कि नहीं दिया। और नॉमिनेशन फॉर्म प्रॉपर अपडेट भी रहना चाहिए। तो नॉमिनेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की, प्लस जो नॉमिनीज होंगे उसमें क्या परसेंटेज क्या रहेगा। तीसरा, जो रिटर्न का फॉर्मेट भी आया है वो काफी डिटेल्ड फॉर्मेट है, उसमें कॉन्टेक्ट एम्प्लॉयज और अदर डिटेल्स भी है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो रिटर्न 1 फरवरी तक रिटर्न जाएगी, रूल्स में आ गया है। अभी भी प्रेजेंट में रिटर्न है और वो यूनिफाइड रिटर्न 1 फरवरी तक जाएगी। तो वो भी आपको मतलब रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन रखने होंगे। चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और वेज स्लिप वगैरह अपन इश्यू करेंगे, वेज स्लिप का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया कि आपको सैलरी डिस्पर्स करने से 24 घंटे के पहले आपको उसको वेज स्लिप इशू करनी होगी, जिससे एम्प्लॉय उसको देख ले कि हाँ यार उसका क्या, उसको सैलरी मिलनी थी, क्या उसके डिडक्शन हैं और उसको क्या मिलेगा, जिससे अगर कुछ भी उसको ऑब्जेक्शन है, कुछ कंसर्न है, तो आपसे डिस्कस कर सके। एक एएसएससी में जो अपने डिस्कस किया इंश्योरेंस वाला पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इंश्योर्ड करें डे 1 से, कि उसमें है कि आप आधार से उसका वेरीफाई करो, पोर्टल पर रजिस्टर करो, उसका इंश्योरेंस नंबर तुरंत जनरेट हो जाएगा और विद इन 30 डेज, आपके पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर उसकी डिटेल्स को अपडेट कर लो। और
अगर 30 दिन तक आपने उसको अपडेट नहीं किया तो वो सारी वो इनवैलिड हो जाएगा और उसके कंसिक्वेंस फिर आपको बियर करने पड़ेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज यू विल हैव टू पे द कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स। सो यहाँ पे आपको ये देखना है, आपको फंड फ्लो का अच्छे ध्यान रखना है कि विद इन 7 डेज आपको सैलरी का पेमेंट करना है। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस टू मीट कि सब अपन हम छोटे व्यापारी हैं, 5 एम्प्लॉई हैं, 2 एम्प्लॉई हैं, यहाँ पर ऐसी कोई कोड ऑन वेजेज में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल, नो थ्रेशोल्ड हैज बीन स्पेसिफाइड। सो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जो सोशल सिक्योरिटी कोड्स हैं वहां पर लिमिट है कि 10-20, बट कोड ऑन वेजेज के लिए कोई लिमिट नहीं है। बस केवल सेक्शन 15 में जो मेंशन किया हुआ है कि उन कंप्लायंस को करने के लिए आपको इन केस ऑफ डोमेस्टिक पर्पज और एग्रीकल्चर पर्पज, if there are up to 5 employees, these provisions are not applicable. Section 50 is not applicable. Otherwise, all provisions are applicable of code on wages to every establishments. So this is from my side, and now I welcome the question and answers. Please, ma'am, if you have any, there are any questions and answer, please let me know. Madam, please, am I audible? Yes, thank you, Sunil sir. Am any question? Audible? Yes, ma'am. कोई questions हैं तो बताइए please. Yeah, there's some questions. Tushar from Jaipur has asked, is there any working hours for office employees also other than labor? ये एक्चुअली जो ओएसएच कोड है वो वर्कर्स के लिए स्पेसिफाई किया है, और जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो गवर्न करेगा कि क्या उसके वर्किंग आवर्स रहेंगे क्या नहीं है, और उसमें है ऑलरेडी। पर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वर्कर किसको कहते हैं और एम्प्लॉय किसको कहते हैं कि, और जो वेज की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज वाई में जो हमने स्पेसिफाई किए देखा है कि जो एम्प्लॉय सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी में है और उसकी वेजेस अप टू 15,000 है, तो वो मोर देन 15,000 है तो वो एम्प्लॉय में फॉल करेगा। तो एम्प्लॉय फॉल करेगा तो जो अपन सैलरी का रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो यहाँ पर उसको स्पेसिफाई करना है। अगर वो वर्कर हो जाएगा तो ओएसएच कोड से कवर हो जाएगा, और अगर वो एम्प्लॉय में फॉल करेगा तो उसको सॉप एक्ट से देखना होगा। तो अब जो 8 आवर्स 48 आवर्स है वर्कर्स के लिए है, और एम्प्लॉयज के लिए सॉप एक्ट है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल है चीजें, टाइमिंग्स है। Okay, sir. Okay. Ramesh from Chennai has asked whether a practicing CA not having any staff but only 5 article clerk had to comply with provision of new labor code. न्यू लेबर कोड में ऐसी कोई कंप्लायंस देखिए, आप देखेंगे कि फिर जो अपन बात करेंगे जो अदर कोड्स हैं अदर देन कोड ऑन वेजेस, जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड्स है वहां पर थ्रेश होल्ड है, हर पार्ट का थ्रेश होल्ड है कि ईएसआईसी जब एप्लीकेबल होगा, पीएफ जब एप्लीकेबल होगा, और जो कोड ऑन वेजेस है वहां पर कोई थ्रेश होल्ड नहीं है। पर कोड ऑन वेजेस तो जब भी एप्लीकेबल होगा जब एम्प्लॉय होंगे, और जब एम्प्लॉय ही नहीं है तो कोड ऑन वेजेस कैसे एप्लीकेबल होगा? कंप्लायंस तो जब करना होगा, तो सिंगल एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय है सिंगल भी एम्प्लॉय है तो उसको मतलब पेमेंट तो टाइम से देना है। Okay. Soumya has asked from Chennai, is there a change in vesting period of 5 years for gratuity for permanent employees? सॉरी मैम दोबारा बोलिए। Is there a change in vesting period of 5 years for gratuity for permanent employees? No any changes, only this is the new clause inserted regarding the fixed term employees कि जो उनका क्या होता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस क्या आती है, 11 महीने का एग्रीमेंट कराते थे, 11 महीने का एग्रीमेंट उसका रिन्यू कराते थे, और वो कई सालों तक काम करता था पर फिर भी वो ग्रेजुएटली एलिजिबल नहीं होता था। तो ये उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए इन्होंने कहा कि इफ देयर आर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट देन उसका 1 साल भी अगर हो जाता है कंप्लीट तो उसको बेनिफिट मिलेगा। Okay. Arun from Lucknow has asked whether additional provision for employee benefit for gratuity leave encashment and employer PF contribution based on revised basic pay to be made in financial year 25-26? हम देखिए 25-26 की बात करें आप तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि लॉ कब से एप्लीकेबल हुआ। अभी सबका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये लॉ एप्लीकेबल कब से हुआ। तो लॉ इम्प्लीमेंट 21 नवंबर से हो गया। अब लॉ 21 नवंबर से हो गया तो कई जगह पर जो प्रोविजंस हैं जहां पर रूल्स को रेफर किया गया है, तो रूल्स को रेफर किया, रूल 30 दिसंबर को आ गए और वो ड्राफ्ट रूल्स आए अभी, जिसमें 45 डेज का एक पीरियड रहता है प्रायर पब्लिकेशन जो एक्ट में मैंडेटरी है। तो ये माने चलिए कुछ जो प्रोविजन द प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द रूल्स
तो वो जब से इफेक्टिव होंगे, जो रूल्स में स्पेसिफाइड रूल्स आ जाएंगे, फिर रूल्स में पीरियड दे रखा है। और पीएफ ईएसआईसी आर इशूइंग रेगुलर सर्कुलर्स। सर्कुलर्स जैसे ईएसआईसी में इतने सर्कुलर्स आए इसी पीरियड में कि कोई कह रहा कि अब इसी महीने से चेंजेस होने हैं, उसमें चेंजेस होने हैं। तो इनके हर डिपार्टमेंट का अपना सर्कुलर आ रहा है, पर पीएफ का ये मानना है मुझे कि पीएफ का प्रोविजन आपका एप्लीकेबल डे 1 से है। तो पीएफ में कोई रूल्स का रेफरेंस नहीं है इस रिगार्डिंग। और डेफिनेशन अगर आप सैलरी की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है आपकी, तो आपको पहले डे 1 से करनी चाहिए। पर अभी क्या है, इसमें कोई क्लियर नहीं है, और पीएफ का ऐसा कोई सर्कुलर भी नहीं आया है। और पीएफ की दूसरी बात ये भी करते हैं कि पीएफ में हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि अगर अलाउंसेज जो यूनिफॉर्मली सबको पे होते हैं तो बेसिक का पार्ट नहीं होंगे। तो वो तो अभी भी आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और या क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूं। अभी लोगों का ये मानना है कि 100 रुपए की ग्रॉस सैलरी है तो आप 50 रुपए पर उसका रिटायरमेंट बेनिफिट दे सकते हैं। ये गलत है। 50 रुपए तो मिनिमम है। अब वो रिमेनिंग 50 में अगर आपने जो अलाउंसेस दिए हैं, अगर वो यूनिफॉर्मली सबको दिए जाते हैं, केवल मतलब कहते हैं कि उसको आर्टिफिशियल स्प्लिट दिखाने के लिए कि सैलरी को 2 टुकड़े कर दिए, सब इस अलाउंसेस, अलाउंस अलाउंस होना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्मली सबको दिया जा रहा है तो वो अलाउंस नहीं माना जाएगा, वो बेसिक पे ही माना जाएगा। तो ये नहीं है, ये रूल नहीं है कि अभी सब लोगों का ये मानना है कि 100 रुपए की ग्रॉस है तो 50 रुपए पर कंप्लाइंस करना है। 50 रुपए तो मिनिमम लिमिट है, और 50 रुपए को अलाउंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अभी आपका क्वेश्चन है कि सब जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी सेक्शन 2 क्लॉज 5 में, उसका चेंजेस आपको अभी से इम्प्लीमेंट करना है। मेरा मानना है क्या कर लेना चाहिए, और पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन को तो ध्यान रखना ही चाहिए। Okay, sir. Palash from Pune has asked, are there any implementation guideline or how to handle transition phase? इसमें गाइडलाइंस तो अभी कैसे आएंगी, गाइडलाइंस का तो कुछ है ही नहीं। कि जो चीजें लॉ तो 70 सालों से लॉ तो चल रहा है। लॉ तो सब सारे पुराने लॉ हैं, सब लॉ चल रहे हैं, सब लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और ऐसा कोई मतलब हाई फाई ऐसा कोई ज्यादा रूल नहीं, मतलब वो नहीं आया कि कोई नया ऐसी कोई नई चीज थोप दी गई हो। सब चीजें पुरानी हैं। थोड़ा सा उनको रिफाइन किया है, और इस तरीके से रिफाइन किया है कि जो एम्प्लॉय वर्ग है वो उसको उसके अधिकार इन द सेंस के ट्रांसपेरेंट रहे एम्प्लॉयर। इसमें जब मैं अगर छोटे छोटे प्रोविजंस अपने हाईलाइट किए थे कि साहब उसको एम्प्लॉय वेज स्लिप देनी है, उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर देना है, या उसको 7 तारीख को पेमेंट देना है। तो ये इससे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो पहले भी लॉ में कहीं तो लिखे हुए थे, पर उनका फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ऐसा कोई गाइडलाइंस मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस आएंगी। Okay, sir. And is the portal for registration in new labor code is active now? हाँ, श्रम नहीं, न्यू लेबर कोड से श्रम सुविधा पोर्टल काफी दिनों से एक्टिव है। और श्रम सुविधा पोर्टल पे सारे कॉमन रजिस्ट्रेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी जो नए मैं रूल्स देख रहा हूँ, तो रूल्स में भी काफी सारी चीजें स्पेसिफाई उन्होंने की हैं। रूल्स में काफी सारे चेंजेस भी होंगे। तो जो फॉर्म्स हैं वहाँ रूल्स का रेफरेंस गलत दिया हुआ है। और पर ये जो श्रम सुविधा पोर्टल है वो इसको गवर्न, अभी तक जो नॉलेज है मेरी, उस श्रम सुविधा पोर्टल ने इनको सारी सर्विसेज देगा। Okay, thank you, Sunil sir, for very informative session. थैंक यू मैडम, And थैंक यू। as we come to the conclusion of today's 80th CP webinar, I would like to sincerely thank our esteemed speakers for sharing their valuable time and expertise, express gratitude to the CP committee for organizing this relevant webinar, thank all the participants for their active participation and interest. I hope today's session have added practical value to your professional journey. On behalf of CP committee, I thank you all once again. Have a wonderful day ahead. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Yes, you can close this.